Hello students. So in the topic or in the chapter Kingdom Plante, we have till now we have discussed about the cryptograms in which we have seen the non-vascular plant. We have discussed about Thallophyta, that is algae. We have discussed about the Bryophyta. Yes, for example, moss. Then we have already discussed about the vascular plant in which the Pteridophyta are the plant where they find the first vascular system in this group of the plant kingdom, that is the Pteridophyta. Yes, the first group जहाँ पे आपने vascular system को देखा. Yes, now till have we have discussed about this plant kingdom in which we have seen the some primitive types of plants हमने देखे. We have discussed about the algae where they have only live in the water. When we have discussed about the bryophyta where they have the capacity to live in water and in as well as in the land, where they are also called as the amphibian plants. Yes, then we see the pteridophyta where they discuss where we discuss about the vascular system first found in this the pteridophyta. Yes, नाउ टिल अगर हम देखें तो अभी तक हमने यही देखा कि जो मॉडिफिकेशन हुए प्लांट्स में टिल उसमें वस्कुलर सिस्टम तक मॉडिफिकेशन हुआ है. बट टुडे वॉट एवर द प्लांट वी हैव सीन, जो अभी हम प्लांट्स देखते हैं दैट इज फुल्ली मॉडिफाइड प्लांट. द सीड्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, इनके बारे में अभी तक हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया, कुछ भी नहीं पढ़ा. यस, सो इन द क्रिप्टोग्राम वी सी कि यहाँ तक हमने इतना एक आपका ग्रुप जो है वो कंप्लीट किया. दीज आर द स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स. यस, विच डू नॉट हैव सीड्स एंड फ्लावर. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी द फेनेरोग्राम्स. फेनेरोग्राम्स मीन्स दे हैव द वस्कुलर प्लांट. ऑब्वियस रहेगा क्योंकि यहाँ पे वस्कुलर सिस्टम ऑलरेडी प्लांट्स में आ चुका था. So from here the vascular system is present in the plant. Yes, अब ये जो phanerogams है, these phanerogams are the seed producing plants. These phanerogams has the seed producing plants which have divided as the gymnosperms and angiosperms. In gymnosperms they have the आपको seed producing plants मिलेगा, but the seed producing plant doesn't have the flower and fruit. Yes, that flower and fruit you can see in the angiosperm. Yes, so today we are discuss about this gymnosperm, which is the seed bearing plant. Yes, seed producing plants. Yes, so see the gymnosperm. So gymnosperms are gymno means naked, gymno means naked and sperma means seed. मीन्स आपको जो सीड मिलेगा दैट इज कैन सीन बाय अ नेकेड आइज, दैट इज नॉट कवर्ड इन अ फ्रूट. ओके, अभी जो हम सीड्स देखते हैं, अगर हम आम के गुठली की अगर बात करते हैं तो दैट इज कि वो फ्रूट के अंदर हमें देखने मिलती है. यस, बट इट इज यहाँ पे जब हम देखेंगे जो द सीड्स जो रहेंगे दे आर naked seeds that can easily seen by our naked eyes. Yes, so the gymnosperm, there are about 70 genera and thousands of living species of gymnosperm in the world, and in the India we have 16 genera and 53 species. Yes, so अगर हम gymnosperm की बात करते हैं तो what are the characteristics of gymnosperms? So they are the non-flowering plant, but they have the seed producing plant. Yes, they have the capacity of seed producing, but they don't have the capacity of flowering. Yes, in normal अगर हम plants की बात करते हैं, in the normal plant they have ovary. In the ovary they are modified into the fruits, and the ovules they are modified into the seeds. मतलब अगर हम नॉर्मल जो प्लांट्स देखते हैं उसमें जो ओव्यूल्स होते हैं, जो ओवरी होती है, द ओवरी इज लेटर ऑन डेवलप इनटू द फ्रूट and the ovule later on develop into the seed. But this type of system is not seen in the gymnosperm where the seed is produced and it is not enclosed in the fruit. वो किसी फ्रूट के अंदर में नहीं रहेगा. So at that उसके कारण it can easily be seen by our naked eyes. Yes, so the seed produced gymnosperm क्या करेगा, seed to produce करेगा, but they are not enclosed in the fruit. So the seed are the naked seed. जो seed रहेगा वो कैसा रहेगा, naked seed that can easily be seen our eyes. Yes, so
लेटर ऑन द जिम्नोस्पर्म्स। अब ये जिम्नोस्पर्म्स क्या है? जिम्नोस्पर्म्स आर द प्लांट्स, और दीज आर द मॉडिफाइड प्लांट्स विच हैव, बहुत बड़े प्लांट्स की हम बोल सकते हैं जिम्नोस्पर्म। अगर आप देख रहे हैं, अगर हम इनकी स्टडी करते हैं, तो अभी तक हमने प्लांट्स देखा दैट आर नॉट सो मच मॉडिफाइड, but the gymnosperm, they are modified plants, and they have long plants, they are evergreen woody trees, they show the secondary growth, उनमें हमें secondary growth देखने मिलेगी because of the presence of the cambium, दिस रिंग विच इज़ फॉर्म एट द स्टेम्प ऑफ द, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसमें अगर आप कभी उसको क्रॉस सेक्शन अगर उसका देखेंगे हम, तो क्रॉस सेक्शन में आपको इस तरह से रिंग्स दिखाई देते हैं। यस, दिस रिंग्स जो स्टेम आपको प्लांट्स में दिखाई देते हैं, दैट रिंग शोज कि एक रिंग एक प्लांट एक साल में कंप्लीट करता है, तो द रिंग्स विल शो द ईयर्स ऑफ दैट प्लांट। सो दैट ये जो रिंग्स हमें देखने मिलती है कौन से प्लांट्स में देखने मिलती है, जहाँ पे हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने मिल रही है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कैम्बियम। सो टिल नाउ वी हैव, जो भी हम देख रहे थे प्लांट्स, वो उसमें एक सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही थी, बट अब जो हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो इन जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं, वी हैव सीन कि वहाँ पे हम वी विल सी कि वहाँ पे हमको बहुत बड़े बड़े प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, एंड दैट आर एवरग्रीन प्लांट, और उसमें वुडी प्लांट्स, वुडी ट्रीज रहेंगे, मतलब उसका वुड भी जो है यूज किया जा सकता है। यस, सो दे द जिम्नोस्पर्म्स आर द मॉडिफाइड ट्रीज। यस, सो अकॉर्डिंग अगर हम उसको डिवाइड करते हैं, दे आर ग्रुप डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, वेयर द फर्स्ट इज द कॉनिफर ग्रुप, देन सेकेंड इज द Cycadalous group, then third is the Genetallus group, and fourth is the Gingolus group. Yes, जिसमें से conifer group and Cycadalous fruit group, that is Pinus and Cycas, it is ये डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। Yes, then Gingolus की अगर बात करते हैं, तो इसका यहाँ पे गिंगो biloba, this is the gymnosperm which is the living fossil. It is because the plant is found in the living as well as in the fossil form, means it is, ये जो plants है, ये plants ये इतने सालों से हमारे यहाँ पे present है, ये species की, जो एक तो लिविंग प्लांट की तरह भी बिहेव करता है ना, फॉसिल की तरह भी बिहेव कर सकता है, मीन्स हम उनमें डिफरेंट देखेंगे तो वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने हैं, और जिसमें हम कुछ ना कुछ स्टडी कर सकते हैं। यस, सो दे आर दी living fossil, these are the living fossil, that is the ginkgo biloba. Yes, these are the living fossils, and the number of fossil forms is much more than that of the living form. मतलब अभी जो लिविंग फॉर्म है उससे ज़्यादा उसके फॉसिल फॉर्म्स हमें देखने मिलते हैं, बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ कॉल्ड एज द गिंगोगा बिलोबा, इट इज़ कॉल्ड एज द लिविंग फॉसिल। यस, सो इट इज़ द, ये गुड आपका ये एमसीक्यू जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। यस, सो इस ये आप नाम भी डालेंगे तो यू कैन सी द पिक्चर इन गूगल। यस, सो नाउ in this we are going to discuss the pinus and the cycas in detail. Yes, so the pinus, that is the conifer, denotes the conifer group of the gymnosperm, and the cycas is the cycadalous group of the gymnosperm. Yes, so now the pinus tree, as the pines, अगर हम pine tree के बारे में अगर हम जानते हैं कि pines tree are always found in the, ये कौन से एरिया में आप देख सकते हैं, इट इज़ फाउंड इन द, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है, ऐसी जगह पे आपको पाइन्स की ट्री इजीली देखने मिल सकते हैं। यस, इन द बुक वी हैव द डायग्राम ऑफ दिस, हमारे पास पिक्चर है, दिस इज द पाइन ट्री। यस, पाइन ट्री विथ कोन्स। Yes, these are the cones, we will discuss about them also. Yes, so these are the pine tree. So we are going to discuss the characteristics of this pine tree. Yes, so the pine tree, they have the characteristics ki they are the monoecium. These are monoecium means they have the capacity कि plants में ही, एक plant में ही female and male दोनों reproductive organ या reproductive organ present रहेंगे, जिसके कारण they are easily to be fertilized. Yes, so because of this nature they are called as monoecium. They are called as monoecium.
द प्लांट, अगर स्टेम की अगर हम बात करते हैं, सो द स्टेम, ऑब्वियस है कि जो ये प्लांट्स रहेंगे दे आर वस्कुलर एंड दे आर मॉडिफाइड प्लांट्स. यस, सो द स्टेम्स आर वस्कुलर टिश्यूज. स्टेम्स में क्या रहेगी, वस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट रहेंगे, दैट इज द ट्रैकिया इज प्रेजेंट एंड दे आर मॉडिफाइड ऑफ द, ये जो फिनोलोगैम्स है दे आर मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द क्रिप्टोग्राम्स. यस, तो जिम्नोस्पर्म में हमें क्या देखने मिलेगा, वस्कुलर सिस्टम देखने मिलेगा एंड दे आर द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द स्टेम्स. यस, अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, दे हैव शोन सम एक्रोपिटल अरेंजमेंट. यहाँ पे आपको देखो स्टेम्स, दिस इज द स्टेम्स एंड यहाँ पे आपको लीफ जो है इट इज सीन, ये आपको इस तरह से लीफ दिखाई देंगे. यस, दीज आर द ब्रांच. जो साइकस में है, सॉरी जो पाइनस में है, दे आर, आपको कैसे दिख रही है, जो लीव्स है दे आर ब्रांच. उसमें कैसे स्टेम्स है, उसके बाद लीव्स, दे आर ब्रांच. सो अब ये जो लीव्स है, दीज आर, ये अगर हम इनकी बात करते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीव्स वी फाउंड इन द पाइनस ट्री. यस, सो फर्स्ट इज द follicular leaves. These are the green color leaves or the needle shaped leaf. This is responsible for the photosynthesis and they are preparing their own food. Yes, so the green leaves, they are the spiny needle like, एक needle like structure रहेगा, they are green in color. and और इसके बाद second type of leaf, it is the scaly leaf. दिस लीव इज द स्केली लीव. ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द स्केली लीव, जो स्टेम को कवर करके रखता है. ये पूरा स्टेम को कवर करके रखता है. इन द बुक में अगर हम देखते हैं तो बुक में इजीली यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज हाउ. अगर हम देखेंगे कि इस तरह से आपको, जैसे अगर डायग्राम में ये साइकस का दिया हुआ है, बस इसी तरह से आप देखेंगे कि पाइन्स में भी, या पाइनस में भी इसी तरह से रहेगा. जो लीव्स रहती है, जो स्केली लीव्स रहेगी, वो स्टेम को पूरा कवर करके रखेगी. एंड हियर इन द साइकस, यहाँ पे आपको जो लीव्स, स्टेम्स जो दिख रहे हैं, ये कैसे हैं, सॉरी, जो लीव्स हैं दे आर अनब्रांच्ड है. कैसी है, अनब्रांच है, मतलब मिडिल से ही ये निकल रही हैं. बट इन द पाइनस दे आर ब्रांच. दिस इज, ये इस तरह से उसका स्ट्रक्चर बन रहा है. और ये जो स्ट्रक्चर है, ये एक तरह से आप देखोगे तो आपको जो पुरानी लीव्स है वो कैसी दिखेगी, बड़ी. दे आर लार्ज एंड दे आर ज़्यादा फोटोसिंथेटिक उसमें रहेगा, बिकॉज दे हैव मोर फोलियर लीव्स. यस, और जैसे जैसे जो छोटी लीव्स होती जाएंगी, स्केली लीव्स आर स्मॉल, दे आर स्मॉल एंड मेम्ब्रेनस एंड ब्राउन. दे आर ब्राउन कलर की रहेगी, मेम्ब्रेनस रहेगी एंड दे आर स्मॉल इन साइज रहेगी. वेरेज द फोलियर लीव जो रहती है, फोलिएज लीव जो रहेगी, दे आर ग्रीन, दे आर सिंपल नीडल लाइक स्ट्रक्चर एंड दे आर पिनिएटली कंपाउंड. और इसके कारण वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, जो प्लांट का स्ट्रक्चर है, एक तरह से ये कोन की तरह ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगा. बिकॉज जो नीचे की लीव्स रहेंगी, ये कैसी रहेंगी, दे आर ब्रांच है, बड़ी लीफ रहेगी. वेरेस ऊपर की लीव्स रहेंगी वो छोटी रहेगी, जिसके कारण उसको एक कोन की तरह शेप मिल रहा है. बिकॉज ऑफ दैट दे आर द मेंबर ऑफ दिस कोनिफर ग्रुप. यस, सो लीव्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो लीव्स में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीव्स. एक फोलियर लीव्स की हमने बात की, दे आर द नीडल लाइक ग्रीन कलर की रहेंगी. यस, दे आर हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस. और इनमें जो स्टोमेटा मिलेगा, दैट इज द स्ट्रंकन स्टोमेटा. स्ट्रंकन स्टोमेटा मतलब सिकुड़ा हुआ रहेगा, मीन्स इट विल रिड्यूस द रेस्पिरेशन. ये जो ट्रांसपिरेशन को रोकेगा, वो जिसके कारण क्या होगा कि दे हैव द एबिलिटी टू मेंटेन द वाटर लेवल इन द कोल्ड इन्वायरमेंट. यस, सो फोलियर लीव्स रहेंगी, स्केली लीव्स रहेंगी एंड द थर्ड टाइप ऑफ लीव, दैट इज द स्पोरोफिल्स. दे हैव द स्पोरोफिल्स. The leaves has spores producing structure, they are called as the sporophylls. Yes, the sporophyll spores, they may be microsporophylls or they called as the male, and they are also the megasporophylls and they are called as female
ओके। सो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं दे फॉर्म्स, यहाँ पे हमें जो पाइन ट्री है, पाइनस ट्री है, इसमें एक ही ट्री में आपको फीमेल और मेल दोनों देखने मिलेंगे, दोनों स्पोर्स देखने मिलेंगे. So the male they called as the microsporophylls and the female called as the megasporophylls, and they arrange in a compact structure to form a cone. This is the cone. Yes, ये जो आपको structure दिख रहा है, this is the cone. This is the type of leaf, and these are the spore producing leaf, where the spore producing leaf जो male जो रहेगा, it is found in the cluster. Male जो sporophylls है, they अगर हम प्लांट्स की अगर बात करते हैं, सो जो प्लांट में एट द टिप ऑफ द प्लांट द मेगा माइक्रोस्पोरोफिल्स आर प्रेजेंट इन द क्लस्टर. यहाँ पे क्या ये यहाँ पे मेल जो है दैट इज द माइक्रोस्पोरोफिल्स, दे आर प्रेजेंट इन द क्लस्टर फॉर्म. यस, एट द टिप ऑफ द tree. Yes, whereas the megasporophyll that is the female, they are found, एक ही रहेगा, वो क्लस्टर में हमें नहीं मिलेगा. दे आर इन द सिंगल फॉर्म, दे आर फाउंड इन द स्केली लीव्स. वो कहाँ मिलेगा हमें देखने के लिए? स्केली लीव्स में मिलेगा. यस, यहाँ पे आपको कोन लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा. दिस इज ऑफ मेल, जो आपको प्लांट के टिप में मिलेगा. वेरेज जो फीमेल है दैट इज कॉल्ड एज द मेगास्पोरोफिल्स, दे फाउंड, ये स्केली लीव्स में मिलेगा और वो क्लस्टर में नहीं रहेगा, झुंड में नहीं रहेगा. दे फाउंड, वो सिंगल वहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगा. यस, एंड जो मेल रहेंगे दे आर स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू द फीमेल. द फीमेल आर लार्जर इन साइज. Yes, so the females they are larger in size as compared to the males. Male they called as the microsporophylls and female they called as the megasporophylls. And they are compactly arranged. Because of this compact nature, they forms the cone. Yes, the male it is found in the cluster on the tip of the plant and they are smaller in size, whereas the female they are found in the scaly leaves and they are larger in size. Yes, so this is about the leaf. तो हमने देखा कि there are three types of leaf. We found the scaly leaves, then second is the foliar leaf, scaly leaves. This is the plant. Yes, this is the scaly leaf, or you can say this is the scaly leaf. Yes, and this is the foliar leaves. और इसी में अगर हम बात करते हैं, so अगर leaves that are has the spore producing structure, that is the sporophylls, and megasporophylls, that is the males, they are found at the tip of the plant, whereas the female found at the scaly leaves. Yes, ये झुंड में नहीं रहेगा, सिंगल आपको देखने मिलेगा. So this is the different types of leaves which is found in the pinus tree. Yes, regarding the roots are modified roots. They are the modified root and they mostly found in the association with the fungi, and because of that they are called as the mycorrhiza, or they called as the mycorrhizal roots. Yes, because it is found in association with fungi or fungi, whatever you say. Yes, so जब वो फंजाई के साथ उसका एसोसिएशन रहेगा then they are called as the mycorrhizal, and because of that they called as the mycorrhizal roots. Yes, now see the cycas. Cycas की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, they are mostly found in the warmer climatic condition. जो वार्मर क्लाइमेटिक कंडीशन में हमें देखने मिलता है. यस, साइकस ट्री इट इज़ द ऑर्नामेंटल प्लांट. ये हमारे घरों में आपने कई बार देखा होगा, किसी किसी के गार्डन में भी ये साइकस का प्लांट होता है. यस, दीज आर द साइकस प्लांट. जो इसमें हम देख रहे हैं, इट इज़ द, ये आपको दिख रहा है, दिस इज़ द स्केल लीव्स एंड दिस इज़ अनब्रांच. उसमें सिंपल जो लीव्स है उसमें ब्रांचिंग नहीं हो, सिर्फ ऊपर आते जा रहा है. यस, सो दे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे आपको रूट का एक डायग्राम दिख रहा है, दैट इज द रूट इज कॉल्ड एज द कोरोलॉइड रूट्स ऑफ साइकस, जिसमें आपको हियर एक जैसे इट इज सीन की कुछ
नोड्यूल फॉर्म, या आप बोल सकते हैं इस तरह से अदरक आपको किस तरह से दिखाई देता है उस तरह से ये आपको इस साइकस की रूट्स दिखाई दे रही है। And this roots show the association with the algae. This roots show the association with algae और the blue green algae के साथ ये अपना association show करता है. Yes, और ये this is also the diagram of this root. Yes, cross section उसका दिया हुआ है यहाँ पे. Yes, so this is how the diagram different diagrams आपको यहाँ पे cycles के दिए हुए हैं. Yes. So the cycas is found in the warmer climatic condition and the stems are unbranched. Yes, अगर हम इनकी stems देखते हैं तो ये stem जो है वो कैसी है, अनब्रांच है. Yes, leaves की अगर बात करते हैं तो उसमें दो types की leaves हमें देखने मिलती है. That is the foliage leaf that perform the photosynthesis. This is the foliage leaf. These are the foliage leaf. और उसको cover जो scaly leaves है, these are covering the second is the scale leaves or the scaly leaves which cover the stem. ये जो है stem को cover किए हुए हैं. So these are the two types of the leaves found in the cycas. Yes, अगर हम reproduction की बात करते हैं तो how they reproduce, so देयर हैव टू टाइप्स ऑफ ट्री. हमें अगर साइकस ट्री की अगर बात करते हैं तो हमें दो टाइप के ट्री देखने मिलेंगे. एक तो फीमेल, सेकेंड इज मेल. यस, जहाँ पे हम मेल में देखेंगे तो वी फाउंड द मेल कोन. हमें कोन की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देगा मेल प्लांट में, वेरेज फीमेल्स में हमें कोन नहीं देखने मिलेगा. दे माइक्रोस्पोरोफिल्स फॉर्म्स द कोन. यहाँ पे जो माइक्रोस्पोरोफिल्स जो हमने देखे थे, जो पाइनस में भी बात की थी हमने, so they forms the cone, whereas the megasporophylls they found in the female tree here. So यहाँ पे अगर हम reproduction की बात करते हैं तो both the trees are different, male and female trees are different. Because of this nature they are called as the dioecious tree. They are called as the dioecious. Yes, and whereas हमने pinus में बात किए थे तो they are the monoecious. Whereas the cycas is the dioecious. So the cycas has also have the property कि वो largest in the plant kingdom में plant है. They have largest male gamete, they have largest female gamete, and they have largest ovule. So these are the characteristics of the cycas. So let us see in the book what is given is. हम उसको बुक में पढ़ते हैं और उससे समझते हैं what is the gymnosperms. Yes, so gymnospermy, gymnos means naked and sperma means seed. There are about 70 genera and thousands living species of gymnosperm involved. In India, it is represented by 16 genera and 53 species. Yes, so this is 16 genera and 53 species found in the India. Yes. Most of the gymnosperms are evergreen shrubs or woody tree. Yes, woody tree है वो shrubs and evergreen रहते हैं. These are primitive group of flowering plant producing naked seeds. Yes, they are the primitive. इसके बाद क्या होगा, फ्लावर स्टार्ट होंगे. तो these are the primitive group of plant where the flowering is मतलब उसके बाद जो है flowering start होगी. Yes, seeds are not covered by fruit, that is ovary, so they are called as a naked seed. Yes, they are vascular plant having xylem with tracheids and phloem with seed cells. ये हमने Pteridophyta में स्टडी किए थे. Yes, xylem with the tracheids and phloem with the seed cells. Yes, the plant's body have the sporophytes. Yes, अब जो हमने टेरिडोफाइटा में देखा था कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, तो स्पोरोफाइट्स जो है वो डोमिनेंट होते जा रहे हैं और गमीटोफाइट्स जो है वो रिसेसिव होते जा रहे हैं. यस, सो इन दिस द गमीटोफाइट्स है टोटली डिसअपियर हो गया है एंड द प्लांट बॉडी इज द स्पोरोफाइट्स. दे टोटली बिकम द स्पोरोफाइट्स. इट इज डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीफ बिकॉज दे हैव, हमने देखा था वस्कुलर सिस्टम इसमें वेल डेवलप्ड हो गया है जिसके कारण वी कैन इजीली डिफरेंशिएट रूट, स्टेम्स एंड लीव्स. यस, द रूट सिस्टम इज टैप रूट टाइप, मतलब टैप रूट टाइप डीप इस तरह से आपको दिखाई देगा. यस, टैप रूट टाइप. एंड in some roots form symbiotic association with other life forms
जैसे कि कोलेरॉइड रूट्स ऑफ साइकस शोज द एसोसिएशन विद ब्लू ग्रीन अलगी जो हमने देखा, एंड रूट्स ऑफ पाइनस शोज द एसोसिएशन विद एंडोफिटिक फंगी कॉल्ड द माइकोराइजा. यस, या तो मेनली दे हैव द कैसा रूट है, दे हैव द टैप रूट सिस्टम, बट दे शो सम, उनके साथ एसोसिएशन देखने मिलेगा या तो अलगी का हम देखेंगे इन द cycles, whereas in the pinus we see the association with the fungi that form the mycorrhizal roots. Yes, in gymnosperm the stems is mostly erect, सीधे रहेंगे, aerial रहेंगे, air में रहेंगे, solid and cylindrical. Yes, secondary growth is seen in gymnosperm due to the presence of cambium. जो इस तरह की, क्योंकि बड़े ट्री रहेंगे तो ऑब्वियस है वो ज़्यादा दिनों तक रहेंगे, ज़्यादा साल तक रहेंगे, उस तरह से अरेंजमेंट हमें स्टेम में देखने मिलेगा. दिस जो एक रिंग का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है स्टेम में, दैट इज द शोज द प्रेजेंस ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस कैम्बियम. इन साइकस इट इज यूजुअली अनब्रांच. अगर हमने साइकस की बात की तो वो उसके जो इट इज अनब्रांच दिखा आपको, ये अनब्रांच था. whereas while in the conifers it is branch. conifers की अगर हम बात करते हैं, pines की बात करते हैं तो they are branch. The leaves are dimorphic. The foliage leaves are green, simple needle like or pinnately compound. Yes, pinnately मतलब इस तरह से स्ट्रक्चर आपको देखने मिला. Yes, whereas scale leaves are small, membranous and brown. Spores are produced by microsporophylls, male, that is the male, and megasporophyll, that is the female. So all the things we have already discussed. So ये जिम्नोस्पर्म और उसमें मेनली साइकस और पाइनस के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया. देन व्हाट इज द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द साइकस? द साइकस इज ग्रोन एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट. यस, बहुत सारे घरों में हम देखते हैं गार्डन में आपको साइकस इजीली अवेलेबल मिल जाएगा. यस, पाइनस इज यूज एज अ सोर्स ऑफ पाइन वुड. ये बहुत अच्छा वुड की तरह यूज हो सकता है. And they can use as a turpentine oil and the pine resin. Resin means जो sticky substance निकलता है, that can also be used. So it is as a source of pine wood, turpentine oil and the pine resin can be used as a, ये जो pinus है they can be used for this purposes. Yes, and the cycas can use as a ornamental plant. Yes, so this is the economic important. Now डू यू नो कि अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जिंको बिलोबा इज द लिविंग फॉसिल, जिसकी मैं आपको बात कर रही थी. जो हमारा फर्स्ट क्लास, जो फर्स्ट 4 जो मैंने आपको ग्रुप्स बताया उसमें से जो 4th था दैट इज द जिंको बिलोबा. इट इज द लिविंग फॉसिल एंड इट इज बिकॉज द प्लांट इज फाउंड इन लिविंग एज वेल एज द फॉसिल फॉर्म, एंड द नंबर ऑफ फॉसिल फॉर्म इज मच मोर देन द लिविंग फॉर्म. यस, आप इनका नाम डालेंगे गूगल में तो आपको इनके पूरे पिक्चर्स इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे. ठीक है, देन देर आर सम डिफरेंट जिम्नोस्पर्म के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है. जिम्नोस्पर्म वेरी इन देयर साइजेस. फॉर एग्जांपल स्क्वेयर sempervirens is the tallest living plant in the world. It is commonly called the coast redwood of California. The height of the plant is about 366 feet, whereas Taxodium micronatum has the girth मतलब उसकी चौड़ाई is about 125 feet. This is also a gymnosperm जिसकी girth मतलब उसकी चौड़ाई कितनी है 125. And next the plant that is the Zamia pygmea is the smallest gymnosperm. This is the smallest gymnosperm. It is about 25 centimeter only. So these are the different name of the different gymnosperm having different characteristics. This can be asked for the MCQs in the competitive exam. So ये आपको अच्छे से याद रखना है whatever the name. Yes, so this is these are the different characteristics of gymnosperm जिसमें हमने साइकस और पाइनस के बारे में डिटेल में स्टडी की. Yes, so it is the modified type of the plant where they have the vascular system.
where they have the seed producing property but they doesn't have the flowering property. Yes, so all the characteristics whatever this modified plant or the today's plant whatever we have seen today, तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नेक्स्ट ग्रुप में देखने मिलेगी, दैट इज इन द जिम एंजियोस्पर्म. यस, इट इज इन द एंजियोस्पर्म. So these are the fully modified or the advanced group of the flowering plant. So in the next class we will discuss about this angiosperm. Yes, so see you in the next class. Bye, take care.